یہ اصل میں نا آپ بھی نا اس نے پہلے بھی یہ کام کیا ہے تو جی مائک میوٹ کیجیے گا بدر بھائی، مائک میوٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم استاد محترم۔ السلام علیکم استاد محترم۔ آواز نہیں آ رہی؟ ہیلو، جی استاد صاحب اب آئیے استاد صاحب آپ کی آواز۔ اچھا کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے؟ استاد صاحب یہ وہی وہ رجب والے موضوع پہ بات ہو رہی تھی، تو درمیان میں پھر وہ تشیع کا موضوع شروع ہو گیا، تو پھر درمیان پھر وہی بات آ گئی دوبارہ۔ صحیح ہے۔ چلیں کالر اٹھائیں، پھر کوئی کالر آئے تو بات ہو۔ جی ٹھیک، میں اٹھاتا ہوں استاد صاحب۔ جی ڈاکٹر بلال۔ ہلو جی جناب۔ جی، میں یہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں جو بس یہ دو چار باتیں میں نے سنی اور میں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اوپر ابھی تھوڑی دیر پہلے یار کے بھائی آئے ہیں، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ میں سنی مسلمان ہوں الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے سب بہترین ہے زندگی میں۔ اللہ کا شکر ہے سب بہترین ہے زندگی میں۔ بات کر رہے ہیں سارے کہ ایک بھائی نے بات کی ابھی کہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں، شیعہ مسلمان نہیں ہوتے۔ یہ کہاں کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ ہم لوگوں نے بتانا ہے کہ شیعہ مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم دوسرے کی گریبان کو کہہ رہے ہیں پکڑ پکڑ کے تو گندا انسان ہے، تو برا پہلے انسان ہے، ایک سوال کا جواب دے دیں نا، پہلے ایک سوال کا جواب دے لیا استاد صاحب سے، پھر اگلا سوال کیجیے گا، آپ کے تمام سوال سنے جائیں گے۔ جی استاد صاحب آپ فرمائیں۔ شیعہ، ہر شیعہ جو ہے نا وہ کافر نہیں ہوتا۔ جس شیعہ کا عقیدہ کفریہ ہوگا وہ شیعہ کافر ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ قرآن کے اندر تحریف ہو گئی ہے، یہ قرآن موجودہ قرآن جو ہے یہ وہ نہیں ہے جس کے اندر ولایت علی کا ذکر تھا، اور اس قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے، تو یہ عقیدہ کفر ہے۔ جس کا بھی یہ عقیدہ ہے وہ کافر ہے۔ اب وہ چاہے کوئی شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مولا علی جو ہیں وہ خدا ہیں، وہ اللہ ہیں۔ ابھی تو وہ آج کل ٹک ٹاک کے اوپر اور یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر ویڈیو بھی بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ وہ شیعوں کا ایک جلوس نکلتا ہے، تو ادھر وہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ اللہ ولی، اللہ علی، اللہ علی، اللہ علی۔ تو جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کافر ہے۔ بہت جو شکریہ۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور دیگر صحابہ کو کافر مانے، وہ خود کافر ہے۔ تو اس کی اور بہت سی وجوہات ہیں کفر کی۔ جو امہات المومنین کو گالیاں نکالے وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے جی میرے بھائی؟ جی میں جزاک اللہ۔ اور دوسری بات اصل میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کون سائیں رنگ نہیں سی ہے بدو نال ہے اینو پرا جا رکھو، پرا چکو چک کے سن رہے ہیں جی مجھے؟ قاسم بھائی اپنا مائک میوٹ کر لیں، ہوسٹ۔ اچھا، میں ذرا یہ ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں جی رجب بٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، میں اس نے جو الفاظ ادا کیے ہیں اسے غلطی سے ہوئے ہیں یا اس نے جان بوجھ کے ادا کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے وہ جو ہے
اس نے معافی مانگی ہے، جو بھی کیا ہے، ادھر کعبہ میں گیا ہے، کعبہ شریف میں گیا ہے، وہاں جا کے اس نے معافی مانگی ہے، عمرہ ادا کیا ہے، ادائی کی ہے. اس کا جو جزا و سزا کا معاملہ ہے وہ اگر وہ معافی مانگتا ہے اور قانون اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے وہ، ٹھیک ہے. اس میں ہم یا آپ یا کوئی دوسرا تیسرا بندہ یا کہ جی میں اس کے گھر کو اڑا دوں گا یا مار دوں گا، یا اس کے گھر کی، اس کی والدہ یا اس کی خواتین، اس کو عورتوں گھر کو یہ کر دوں گا میں تو برباد و تباہ کر دوں گا اس کو. اصل میں آج سے 2 سال 3 سال پہلے یہ جب آدمی کچھ بھی نہیں تھا اور اس طرح کے بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو تب کوئی تکلیف نہیں تھی کسی کو. ان لوگوں کو جن لوگوں کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اب وہ اصل میں ایک انفلوئنسر بن چکا ہے، ٹھیک ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں، جان پہچان ہے اس کی ملک میں، کوئی ایک لائن میں لگ چکا ہے، وہ فہرست میں آ چکے ہیں ان لوگوں کی. تو اس وجہ سے بھی لوگوں کو اس سے تکلیف ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی فالوئنگ بڑھانے کے لیے یا اپنے لوگوں سے ریویوز لینے کے لیے بھی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں آ کے اس کو اتنا بڑھا چڑھا دیا ہے. اور باقی اچھائی اور برائی میری جو میں عمل کرتا ہوں وہ میں اور میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. جو میں نے گناہ کیے ہیں وہ میرے اور میرے خدا کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. باقی تو یہ جو باقی دنیا ساری لگی ہوئی ہے ایک آدمی کے پیچھے کہ اس کو ہم نے یہ کر دینا کیونکہ اس نے یہ گستاخی کی ہے. گستاخی جو کی ہے اس نے، اگر قانون اس کو، ہمارے ملک میں قانون ہے، ایک واحد مسلم اسٹیٹ ہے جس کے اندر یہ قانون میں شامل ہے پوری دنیا کے اندر، کہ جس کے اندر قانون میں شامل ہے کہ گستاخی کی سزا ہے اور باقی جو معاملات ہیں اس کی بھی سزا ہے، ٹھیک ہے. باقی اور جو 295 ہے جو اے اور سی ہے، یہ باقی کسی ملک کے اندر اس کی تحریر نہیں ہے، صرف ایک واحد پاکستان میں تحریر ہے اس قانون کی. آپ تھوڑا سا اس بارے میں مجھے ذرا بتائیں گے تو مہربانی ہوگی. جی آپ کا نام کیا ہے؟ جی میں ڈاکٹر بلال ہوں. اچھا جی. اصل میں وہ آپ کی گفتگو سے مجھے لگ رہا تھا کہ یا تو آپ انجینئر ہیں یا آپ ڈاکٹر ہیں تو یا آپ پروفیسر ہیں. سر جی میں نے پوری زندگی میں یورپ میں گزار چکا ہوں، میں ادھر ہی رہا ہوں، ادھر ہی پلا بڑا، ادھر ہی ڈاکٹر، ادھر ہی رہتا ہوں میں، ٹھیک ہے. لیکن میں بالکل جو ہوں میں مسلمان گفتگو سے ہمیں پتہ چل جایا کرتا ہے. بالکل میں جو ہے وہ میرا جی بالکل. اب آگے اپنی بات کو جو کنٹینیو کریں. جی بات کرنے دیں گے تو میں کروں گا نا. تو یہ اصل میں پہچان ہوتی ہے ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر کی، کہ بات بھی نہیں کرنے دیتے. اچھا بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مار دینا ہے، قتل کر دینا ہے، یہ کر دینا ہے، وہ کر دے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا. جو کہہ رہا ہے اس کو جا کے آپ پکڑے، اس کا گریبان پکڑیے جا کے، کیونکہ آپ نے اتنی باتیں کر دیا وہ ساری اب مجھے کلوز کرنی پڑیں گی، سب کے جواب دینے پڑیں گے. ایک بات آپ نے یہ کی کہ وہ رجب بٹ سے پہلے بھی یہ توہین ہو رہی تھی. تو بھائی جو پہلے اگر کوئی توہین کر رہا تھا تو اس وقت بھی احتجاج ہو رہے تھے. آپ نے ایک بات یہ کی کہ آپ اس کو بڑے فالوور اور بڑے 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 فالوور تو یہ تو وہ، تو اب لوگ جو ہے نا اپنی فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. واللہ میں آپ کو قسم اٹھا کہتا ہوں کہ اس کے کفر کی وجہ سے، اس کی توہین کی وجہ سے رجب بٹ کو میں نے جاننا ہے. میں حالانکہ سوشل میڈیا کا پرانا، سمجھ لیں کہ مجھے کھلاڑی کہا جاتا ہے یا پرانا بابا کہا جاتا ہے، آج تک میں نے اس کا نام ہی نہیں سنا. نہیں تو بڑے بڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہماری نظر میں ہوتے ہی ہیں عمومی طور پہ. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑے بڑی 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 فالوئنگ تو یہ تو وہ. تو فالوئنگ یہ کون سا معیار ہے جی؟ جس کی فالوئنگ ہو تو وہ گستاخی کر سکتا ہے، جس کی فالوئنگ نہ ہو تو وہ جناب نہیں کر سکتا. یہ کون سا معیار آپ نے بنا دیا ہے؟ اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ آپ کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یا تو انجینئر ہیں یا ڈاکٹر ہیں تو یا پروفیسر ہیں، کیونکہ اکثر ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر ایسی ہی باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا تو اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو اتنی کوئی نا درد نہیں ہونا چاہیے رجب بٹ کے اوپر. وہ عدالت لگی ہے، جائیے، جا کے عدالت کے اندر کیس لڑیے اور اپنا مقدمہ وہاں پہ پیش کریے. اگر کسی گستاخ کو آپ نے بچانا ہے نا، اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کے اس کو بچائیں. ایسے نہیں بچنا. بھائی جان میری بات سنیں، جو عدالت اللہ کے بات پاس تو کرنے دینا، بات تو کرنے دے ڈاکٹر صاحب.
बात तो अदालत जो करने ऊपर लगी है देना, ना अल्लाह के पास, वो इन बात तो अदालतों से करने बहुत दें, बड़ी अदालत है। मुझे ठीक है, बात तो करने इस देना। अदालत आप अपने डॉक्टर होने का सबूत तो ना दें, बात तो करने दें, बात तो करने दें। मान लिया आप डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं और इंजीनियर हैं, लेकिन इंसानियत तो ना भूलें। अच्छा, बात यह है कि यहाँ पे मेरे आका हजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस का मसला है। मोमन की एक सिफ्त कुरान पाक के अंदर अल्लाह फरमाता है कि अशिद्दाउल अल कुफार, ये काफिरों के ऊपर मोमन जो होता है बड़ा सख्त होता है। रुहमाउ बैनहुम, और आपस के अंदर बड़े ये रहीम होते हैं। वैसे तो ये आयत का अव्वलीन जो मिसदाक है वो सहाबा कराम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, हजरत अमीर मुआविया, इमाम हसन, इमाम हुसैन और दीगर तमाम सहाबा अव्वलीन मिसदाक इस आयत का वो है। और अगर अमूमी तौर पे देखा जाए तो तमाम मोमिनीन इस आयत का मिसदाक है कि मोमिन की सिफ्त ये होती है कि वो काफिरों के ऊपर सख्ती करता है और आपस के अंदर बड़े ये रहीम होते हैं। आप क्या मेरे आका हजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस का जो कानून एक बना दिया गया है, तो उसको इतना हल्का समझ रहे हैं? और मतलब ये कि जो उस कानून की जो समझ लें कि एक तलवार लटक रही है, एक तलवार लटक रही है गुस्ताखों के सर के ऊपर, क्या उस तलवार को हटाना चाह रहे हैं और आप हिमायत कर रहे हैं? कोई शर्म नाम की कोई चीज भी है कि नहीं कर रहे हैं? कोई रत्ती बराबर कोई शर्म नाम की कोई चीज भी है कि नहीं कर रहे हैं? तो खुदा खोफी करिए, खुदा खोफी करिए, क्योंकि काफिर के कुफर के अंदर शक करने वाला खुद काफिर हो जाता है। मन शक्का फी कुफर ही फकद काफर। तौहीने रिसालत का मुजरम शातिम का दिफा करने वाला खुद शातिम है। दुश्मन का जो दोस्त होता है वो भी दुश्मन होता है। तो ना करिए, इतनी ज्यादती ना करिए कि आप इन शातिमीन की लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएं। क्यों दिफा कर रहे हैं? दफा करें, आप लानत डालिए। कानून जाने, अदालत जाने, पुलिस जाने, हमारे इदारे जाने, बस ठीक है, बात खत्म है। हमें इधर टिकटॉक पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के तबसरे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इतने पेट के अंदर मरोड़ तो उसी के उठेंगे ना जो खुद गुस्ताख है, जो खुद इनका हमायती है। बसूरते दिक्कत तो नहीं उठने चाहिए। क्यों उठ रहे हैं जी? डॉक्टर साहब मैंने अपनी बात कर ली है, अब आप बात कर लें। कि अब कर लें? पहले आप बीच में टोक रहे थे तो मैंने आपको रोका था, अब कर लें, मैंने इजाजत दी आपको। नहीं, जज़ाकल्लाह जी, बस बहुत शुक्रिया ये आपके जवाब का, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी ठीक है, फिर नीचे बैठ जाए, नए कॉलर को ले लें। ये काइंड हर्ट साहब तशरीफ लाए हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जनाब। मैं जी कोई ज़्यादा इस पे डिबेट नहीं करूँगा, सिर्फ चंद मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं और चंद गुजारिशात है वो करूँगा। जी जी। नंबर एक, ये जो भी लोग हैं जो ये रजब भट्ट की उसको यानी उसका दिफा कर रहे हैं और ये उज़र ये लेते हैं कि जी उस पर तनकीद वो लोग कर रहे हैं जो व्यू लेना चाहते हैं और जो फेमस होना चाहते हैं, और ये बिल्कुल गलत है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक रही हमारे इदारों की बात, तो हमारे इदारे भी सोए हुए हैं और वो भी पाकिस्तान के कानून को जूते की नोक पे रखता है, क्योंकि ऑलरेडी ये बंदा शख्सी जमानत के ऊपर है। हेलो। जी
جی بات کر لیں تو جی پھر ہم تو بات یہ بندہ آلریڈی شخصی ضمانت کے اوپر ہے اور عدالت میں بات کر لیں تو پھر ہم بات جی تو یہ بندہ آلریڈی شخصی ضمانت کے اوپر ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بندہ یہ جو مسل کی منافرت ہے یہ بندہ اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہے. یہ کوئی نہ کوئی یعنی اس طرح کی جو غلط حرکت کرتا ہے اور جب اس کو لگتا ہے یہ پھنسنے والا ہے تو یہ بندہ شیعہ کارڈ کھیلنا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ جو ابھی اس نے ریسنٹ حرکت کی ہے اس نے اور اس کے چاہنے والوں نے سوشل میڈیا کے اوپر نہ ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے. اور وہی یعنی جو شیعہ کارڈ یعنی یہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم جی علی والے ہیں اور یہ جی علی کے دشمن ہیں، علی سے نفرت کرنے والے ہیں، اس لیے رجب بھٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ یہ جو آپ اس چیز کے اوپر سٹینڈ لے رہے ہیں آپ لوگ یہ سٹینڈ لیے رکھیں، کیونکہ اگر آپ لوگ خاموش ہو گئے تو نہ کوئی ادارہ اس پہ ایکشن لے گا، اور اگر ایکشن ہو بھی گیا تو یہ شاید حکومت میں اتنے طاقتور لوگ ہیں جو اس کی بیکنگ کے اوپر ہیں، اس کو کوئی کچھ نہیں ہونے دے گا، کوئی سزا نہیں ہونے دے گا، کوئی ایکشن نہیں ہونے دے گا. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ جی، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، بہت خوبصورت الفاظ آپ نے فرمائے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں ہم ایز اے مسلم ہمارا بھی کچھ فریضہ ہے نا کہ مسلمان کو کی جان مال آن شان جو کچھ بھی ہے کل کائنات اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام. بالکل ہم اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے کہ جب اپنی جان مال آن شان اولاد جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار نہیں کرتے. بے شک بھائی وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں. وہ کیسا بے شک مسلمان ہے کہ جس کی وہ راگی نہیں پھڑکتی. یار ہم دیکھیں وہ حکم کیا ہے کہ جب برائی ہو تو تم ایمان کا افضل ترین درجہ یہ ہے کہ تم ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو روکو. فرمایا کہ پھر اگر تم ہاتھ کے ساتھ برائی کو نہ روک سکو تو ایمان کا پھر چھوٹا درجہ یہ ہے کہ کم از کم زبان سے تو روکو. پھر کہا کہ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے، اتنا ہی تمہارا ایمان کمزور ہو گیا تو کم از کم دل کے اندر تو برا جان لو. بے شک تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اب یہ دیکھیں ہم تینوں درجوں کے اوپر کہیں فائز نہیں، الٹا ہم چوتھے درجے کے اوپر فائز ہیں کہ ہم ان گستاخوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. دیکھیں یار کہ کہاں پہ ہم آ گئے ہیں. یہ تو جہالت ہے جی، سراسر جہالت ہے یہ. تو بات یہ ہے کہ او بھائی ایک کتا ہے اس کو مارو بیچ میں بات ختم ہو. ایسے ہی انتشار پھیلا ہوا ہے. اب یہ اور دیکھیے دوسرا ابھی آنے لگا ہے نا یہ پولیس کے کٹہرے میں، ابھی قانون کے کٹہرے میں، تو دنوں میں فیصلہ ہو جانا، دیکھیے گا انشاءاللہ. اور دوسرا ہمارے ادارے کوئی دین کا یا حضور سے پیار رکھنے کا زیادہ جذبہ ان مولویوں کے اندر ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ ہمارے اداروں کے اندر بڑے بڑے عاشق بیٹھے ہیں یار، بے شک بڑے بڑے عاشق بیٹھے ہیں. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جج بیٹھا ہے جو کرسی کے اوپر، کیا وہ عاشق رسول نہیں ہے؟ جو وکیل ہے کیا وہ عاشق رسول نہیں ہے؟ کیا پولیس والے کیا عاشق رسول نہیں ہے؟ کیا ہماری گورنمنٹ عاشق رسول نہیں ہے؟ عشق کے دعوے دار صرف ہم ہی نہیں ہیں، بڑے بڑے عاشق رسول ہیں بھائی. وہ تو دلوں کے معاملے ہیں نا، وہ تو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا سا صبر تحمل رکھیے، دنوں کے اندر اس کا فیصلہ ہونا ہے انشاءاللہ. ہاں اللہ کے حکم سے. ہمیں اپنے اداروں کے اوپر پورا اعتماد ہے اور یقین ہے. ایسی بدگمانی نہیں ہم اپنے اداروں کے بارے، اپنے پیارے پیارے پاکستان اور پاکستان کے قانون کے بارے ایسی بدگمان نہیں ہو سکتے ہم. ہمیں صرف تھوڑا سا صبر اور تحمل رکھنا ہے. ہم تو اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں.
ہم تو ان کو شاباش دے رہے ہیں اس کے اوپر کہ آپ قدم بڑھائیے. ان سب گستاخوں کو جو ہے نا وہ قرار واقع سزا دیں. وہ ملے گی انشاءاللہ سزا ضرور ملے گی. مسئول بن چکا ابھی ہوا ہے پچھلے نا. دنوں کی غالباً پچھلے ہفتے کی خبر ہے کہ 5 شاطمین کو سزائے موت کی سزا ملی ہے. اخباروں کے اندر وہ چلا ہے, مجھے بھی دوستوں نے بھیجا تھا. تو بھائی مل رہی ہیں سزائیں, دیکھیں تو صحیح بنتا کیا ہے, لیکن تھوڑا سا وقت چاہیے. تو یہ سارے تو عمران خان صاحب نہیں نہ ہو گئے کہ جو وہ گستاخوں کو انگریزوں کے حوالے کر دیں. جی تھوڑا سا انتظار کریں. جی شکریہ مفتی صاحب. جی عمران جٹ صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, یہ نا کافی دیر سے میں بھائیوں کی گفتگو سن رہا ہوں, ماشاءاللہ اچھی براڈ ہے, اور انہوں نے بڑا اچھا ایک ٹاپک جو ہے نا اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. اور یہ جو ہے اصل میں معاملہ, تو یہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں, باقی اب تمام دوستوں کو پتہ بھی ہوگا کہ اس کے اندر ہے کیا, کہ اس کے تحت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تضحیک امیز جملے استعمال کرنا, خواہ الفاظ میں, خواہ بول کر, خواہ تحریری, خواہ ظاہری شباہت پیشکش, یا ان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ براہ راست یا بلا واسطہ سٹیٹمنٹ دینا جس سے ان کے بارے میں برا, خود غرض, سخت تاثر پیدا ہونا اور ان کو نقصان دینے والا تاثر ہو, یا ان کے مقدس نام کے بارے میں شکوک و شبہات تصحیق پیدا کرنا. ان سب کی سزا عمر قید یا موت یا ساتھ میں جرمانہ ہوگا. اب یہ اتنا حساس قانون ہے, اور یہ اتنا بڑا اپنے آپ کو انفلوئنس جو ہے کہتا ہے جی کہ میرا بڑا انفلوئنس ہے معاشرے کے اندر, میں بہت بڑا انفلوئنسر بن چکا ہوں اب. تو اس نے یہ سب کچھ پڑھے بغیر ہی جو ہے ایک ویڈیو بنا ڈالی. کیا یہ کوئی ذی شعور انسان جو پاکستان, ریاست پاکستان جو کلمے کے نام کے اوپر مارز وجود میں آیا, اس میں رہتا ہو, اور اس کے اوپر وہ ایسے ہی منہ اٹھا کے ویلاگ کر دے ویوز لینے کے لیے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اب چونکہ یہ ساری چیزیں ویڈیوز میں آ چکی ہیں, اور میں بطور ایک صحافی, میرا یہ سوال ہے, مفتی صاحبان یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں, کہ اب چونکہ مرتکب ہو چکا ہے اور اس نے اعتراف بھی کر لیا ہے, جا کے خانہ کعبہ میں اس نے معافی بھی مانگ لی ہے, لیکن کیا ایک دفعہ اس کو قانون کے کٹہرے میں آ کے معافی نامہ پوری قوم کے سامنے جو ایک قانون لا بنا ہوا ہے اس کے تحت اس کو پیش کریں, وہ آ کے وہاں پہ اپنا جواب دے؟ جی مفتی صاحب. عمران بھائی بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے قانون, مائک ذرا میوٹ کر, مائک میوٹ کریے گا, شور آ رہا ہے. ایک ہے پاکستان کا قانون یا کسی سٹیٹ کا قانون, لا آف سٹیٹ. ایک ہے لا آف شریعت کا قانون. شریعت یہ کہتی ہے کہ گستاخ رسول کو ہر قیمت پر سزا ملے گی. من سبا نبیًا فاقتلوہ, ہر قیمت کے اوپر. وہ جتنی بھی توبہ کرے, وہ چاہے کعبہ اللہ میں چلے جائے, کعبہ کے اندر گھس جائے, وہ کعبے کا غلاف اپنے اوپر لے لے, قرآن کو اپنے سر پہ اٹھا لے, وہ اس کو گھول کے پی جائے, آب زمزم سے نہا لے, کچھ بھی کر لے, اس کو بہرحال ایک دفعہ تو اس کو جناب ختم کیا جائے گا. بقایا اس کی توبہ جو ہے نا وہ عند اللہ ہوگی. اگر اللہ چاہے گا اس کو معاف کر دے گا, اگر اللہ چاہے تو نہ معاف کرے. لیکن اس کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں وہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے, لیکن دنیا میں اس کو ایک دفعہ اس کا کلا کما کیا جائے. یہ ہے شریعہ کا قانون, اور یہی قانون پاکستان کا قانون بھی ہے. یہ جو 295 ہے نا, یہی ہے کہ بھائی اس کو ختم کرو. تو ہمارا جو قانون ہے نا وہ بھی شریعت کے کوئی مخالف نہیں ہے.
शरीयत की हमायत में ही है, तो हमें तो अपने इदारों पर पूरा यकीन है इंशाअल्लाह तआला इसको करार वाकई सजा मिलेगी। अभी तो भागा हुआ है, फरार है, तो जब ये कड़की में आ गया तो देखिएगा। तो बहरहाल ये कड़की से बच नहीं सकता किसी सूरत पर भी। भाई मुसलमान कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता। हर जगह तो मुस्लिम इस्लामिक कानून है। अब ये सोतिया के अंदर भी छुपेगा तो वहां पर भी पाकिस्तान सॉरी मुसलमान है, मुस्लिम लॉ है, वहां फंस जाएगा। मतलब कहाँ जाएगा? दुबई जाएगा तो वहां फंस जाएगा। तो बहरहाल इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या बनता है इस कानून की। बहरहाल ये जो रजब भट्ट की रत्ती बराबर भी हमायत नहीं। दोस्त जो सुन रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, हमायत नहीं। आप देखें तो सही, आप शरीयत के साथ बगावत कर रहे हैं, पाकिस्तान लॉ के साथ बगावत कर रहे हैं। आप एक बागी हो चुके हैं, आप एक शातम की हमायत कर रहे हैं, खुद शातमीन के अंदर शामिल हो रहे हैं। यार को खुदा का खौफ करें यार, मरना नहीं है तुम लोगों ने। कुरान पाक में तो अल्लाह ने फरमाया था कून मा स्वादिकीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, नेक लोगों के साथ हो जाओ। तो तुम लोग उन काफरों के साथ हो गए हो। कूनु माल काफिरीन नहीं कहा, कूनु माल शातिमीन नहीं कहा कि इन शातिमों के साथ, इन काफरों के साथ, इन गुस्ताखों के साथ हो जाओ। नहीं नहीं, कहा स्वादिकीन। तो को खुदा का खौफ करिए। अगर तुम नेकी कर नहीं सकते तो कम से कम बुराई तो ना करो। सादी मोहतरम नीचे ना काफी कॉलर हैं, मुफ्ती साहब बोलने का मौका मिल सकता है? जी जी इमरान जट जी एक सवाल है मुफ्ती साहब। मैं आपकी जो सारी बातें हैं उनसे 100% इत्तेफाक करता हूँ, मेरा भी कहने का यही मकसद था। लेकिन मेरा एक सवाल है बतौर एक सहाफ़ी कि ये जो इतने हसास कानून के ऊपर जो कुछ बोला गया, इसका अब इस बात का तयन होना चाहिए कि किसके कहने पे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि एक ज़ही शऊर इंसान जानबूझ के ऐसा कर नहीं सकता। ये सारी जो प्लानिंग है इसके पीछे पूरा पोल इस कौम के सामने रखना चाहिए कि ये इतने हसास मामले के ऊपर बोलने की जरूरत आखिर किसके कहने पे हुई। ये इमरान भाई, ये जब खिड़की में आ जाएगा ना, ये सब न शोर आ रहा है आपकी तरफ से इमरान भाई। आप माइक म्यूट करेंगे ना तो फिर नहीं शोर आएगा। अच्छा, तो वो ये है कि जब खिड़की में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, वो सब हमारे इदारे उगलवा लेंगे। देखिएगा तो सही, और देखिएगा कैसे सब कुछ। इधर तो वजीर आजम तक नहीं बच सके भाई कानून से, कानून की पकड़ से। तो ये तो शायद ही कोई यही नहीं। कह रहे थे वो, अभी एक दोस्त आए थे, वो फैन फॉलोइंग बड़ी हो गई है तो ये हो गया। तो ओ फैन फॉलोइंग, मैं कहता हूँ चुटकियों के अंदर वो क्या समझते हैं? पाकिस्तान के कानून को इतना ही हल्का समझते हो? ये तो वजीर आजम तक नहीं बच सके, वो जेलों के अंदर पड़े हुए। तो ये तो शायद ही कोई नहीं है। क्या उसकी फैन फॉलोइंग कम थी क्या? तो और अगली बात, क्या उसकी फैन फॉलोइंग ने उसको बचा लिया क्या है? वो अभी तक टेल लगा लगा के मर गए हैं, उसकी वो निकलवा नहीं सके उसको, उसकी उंगली तक को जेल से बाहर नहीं निकलवा सके। उस पूरे के पूरे को निकलवाना तो बड़ी दूर की बात है। तो ये तो रजब भट्ट तो शायद ही कोई नहीं, कुछ भी नहीं है क्या चीज? तो आप थोड़ा सा सब्र करिए, देखिए बनता क्या है। वक्त सब कुछ बताता है, एक वक्त है। बहुत हर शुक्रिया चीज का। जी जी, नए कॉलर को उठा लें उस्मान भाई। जी 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 उस्ताद मोहतरम, अहमद नाम अभी आईडी कह रहे थे, मैं कोई बात करना चाहता हूँ, जवाब देना चाहता हूँ, ये पता नहीं सवाल है तो कॉल करिए। अच्छा इमरान भाई, आप अगर नीचे चले जाएं ताकि नए कॉलर को ले लिया जाए। उस्ताद साहब एक छोटी सी अर्ज है कि नीचे ना एक वो क्या नाम है, गारे समरा वाले के मानने वाला एक आ रहा है, तो मैं उससे उठाने लगा हूँ। फिर हाँ, उससे फिर बात तुम नहीं करनी है, मैं फिर वो ना मसला हो जाता।
हाँ हाँ जी अदील क्योंकि साहब, मैं पता है क्या अस्सलाम वालेकुम जी। फैजान, मेरी तबीयत का तुम्हें पता है कि मैं दुनिया के हर कुत्ते बिल्ले खंजीर से बात कर सकता हूँ, इनसे नहीं। जी मेरे ठीक मेरे होगा। मिजाज का पता है ना आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल उस्ताद अब साहब। बस फिर खुद ही करना, मैं चुप हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा। जी दिल साहब क्या सवाल? सर सवाल ये है कि कानून जो भी बनते हैं वो जाहिर है बेहतरीन बनाए जाते हैं। अब इसके ऊपर फर्ज किया एक शख्स है, वो किसी पे इल्जाम लगाता है, उस पे तौहीन का फर्ज किया इल्जाम लगाता है, फर्ज कर ले, अगर वो साबित नहीं होता, अदालत उसको बरी कर देती है दूसरे शख्स को, तो फिर जिस शख्स ने इल्जाम लगाया उसके ऊपर क्या पेनल्टी होनी चाहिए? बिल्कुल उसके ऊपर फिर धोखाधड़ी का झूठा जो केस है उसका ऊपर फिर वो दायर होता है। ठीक है सर। ये तो अदालत का इसी काम है ना। वक्त एग्जैक्टली अब इसी तरह अभी इस वक्त पोजीशन क्या है कि एक शख्स है जिसके ऊपर एक अभी एक अदील साहब एक सब मिनट लोग जरा देख रहे हैं। ठहरिएगा, एक मिनट जरा ठहरिएगा, बात सुने। आप ये बताएं रजब गढ़ के ऊपर केस सही हुआ है कि गलत हुआ है, ये सिर्फ बताएं। सर रजब भट्ट के ऊपर जो अगर किसी ने जब जो पिटीशन दायर की है उसके अंदर उसने एक प्ली ली है कि इसने ऐसा ऐसा किया, राइट? जब कैसा कैसा किया? मतलब इसने 295 जो उसने आपने वो एफआईआर खुद उड़ाया, पढ़ी है? खुद उसने एफआईआर पढ़ी है 295 आपने? को, यार यही है और क्या है? आपने एफआईआर खुद पढ़ी है कि आप सिर्फ हवाई बातें चले छोड़ने आए हैं, ये बताएं आप मुझे। चले आप पढ़ दें चले पढ़े। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ एफआईआर खुद पढ़ी है कि सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं, ताकि उस हिसाब से डील करें ना आपको। जी जी इस तरह है कि सर जो गुफ्तगू अभी हम जितनी भी चल रही है करंट अफेयर के साथ हम लोग पूरा अटैच है, हम हर चीज से अपडेट है। मेरे क्या क्या दिल क्या साहब आप क्या मेरी क्या चीज बात चल नहीं रही है समझ तो उसके रहे। बारे में मैंने आपको कहा है कि आपने एफआईआर खुद पढ़ी है। चल मैंने एफआईआर नहीं देखी, चले आप नहीं दिखा पढ़ी। दें। अब खामोश कर दे, अब खामोश हो जाए, मैं बताता हूँ। एफआईआर के अंदर उसने 3 बातें जिक्र की हैं। पहली बात जिक्र किया है कि इसने जब नमाज का मजाक उड़ाया। दूसरी बात इसने जिक्र किया है इसने मसीही बरादरी का मजाक उड़ाया। तीसरी बात उसने जिक्र किया है उसने 295C जो कानून है उस कानून का मजाक उड़ाया। अब ये 3 बातें वो हैं कि मसीही बरादरी वाला मौजू बाहर निकाल दें, पीछे बच गई 2, 295A 295C। 295A ये है कि नमाज का मजाक उड़ाया, उसके ऊपर लगी। अब कुरान पाक उसने हाथ पकड़ कर, हालांकि ये कुरान वो है कि शिया का इसके कुरान के ऊपर एतमाद ही नहीं है, वो कहते हैं कुरान ही नहीं है ये तो असल। अच्छा अब इस कुरान के ऊपर हाथ रख के कहता है कि मैं तौबा करता हूँ अपनी सारी चीज़ों से, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दिया जाए। वीडियो के अंदर वो कह रहा है कि मेरे ऊपर एफआईआर हुई है नाजायज़। नमाज की तौहीन की वीडियो मौजूद है। अब वो एफआईआर आप बताएं उसके ऊपर जायज़ हुई थी कि नाजायज़ हुई थी? अब देखिए सर एफआईआर जो होती है ना उसको कहते हैं फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ठीक है? ओ भाई हमें सारा कुछ पता है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, हमें सारे कानून पता है। जो सवाल हो रहा है उस सवाल का जवाब दें। उस्मान भाई मेरी तरफ अजान होने लगी है तो आप जरा हैंडल करें। चले आप चले जाए, फिर उस्मान भाई आप ही आ जाए। गारे समरा वाले आप ही डील कर सकते हैं। तो बात यह है कि दिल साहब वो हो चुकी है बात, एफआईआर आप पढ़ें और उसमें यही कुछ है कि उसके ऊपर बिल्कुल जायज़ एफआईआर हुई है और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो भी है ना, तो यही तो बात हम कर रहे हैं कि वो ठीक है ना, एफआईआर ठीक हुई है और उसकी गवाही खुद, हालांकि पीछे जो वीडियो बना रहा है वो कह रहा है ये नाजायज हुई है, मजाक उड़ा के, और उसको नाजायज भी कह रहा है। अच्छा अब सर इसके मेरे सिर्फ आपके पास ऊपर आने का मतलब ये है, एज ए शहरी, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आपका इस वक्त एक अदालत है जिसके अंदर एक आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो पुलिस ने बनाई है और एक आपकी अदलिया है। जी तो अभी उस्ताद मोहतरम बता रहे थे ना, अदालतें फैसला कर देंगी यार, ये तो सबको पता है। ये तो सबको पता है कि एफआईआर हुई है, फिर उसके बाद में मुकदमा जो है वो चलेगा, अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अभी तो वो भगोड़ा बना हुआ है ना, लेकिन इतनी बात आप कर रहे हैं, उसने गुस्ताखी की है, मजाक उड़ाया कि नहीं? मजाक उड़ाया कि नहीं? देखिए अभी आपने जो भगोड़ा लफ्ज इस्तेमाल किया ना, आपको क्योंकि पता नहीं है ना कि जो एफआईए कैसे बिहेव करती है। जब आप फर्ज किया किसी मुल्क में जाते हैं, मैंने फर्ज किया सऊदी अरब का लेना है ना अगर वीजा,
तो मेरे से क्या लिया जाएगा? मुझसे मेरा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया जाएगा, वो मैं प्रेजेंट करूंगा उधर जहां पे मैंने वीजा लिया है, उसको वो एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद मुझे वीजा जारी करेंगे। उसका मतलब ये होता है कि इस बंदे के ऊपर अगर कोई केस है, ये अगर मतलूब है, अगर ये किसी चीज के अंदर क्रिमिनल एक्ट के अंदर है, तो हम इसको, ताकि आप पुलिस हमें बता दे। पुलिस ने उसे क्लियर करके पुलिस ने आगे रिपोर्ट की, उस पे उसको वीजा मिला, वो बाहर चला गया। ठीक है, अदालत अगर जिस दिन वो अदालत में उसको बुलाया जाए और वो अदालत में पेश ना हो, अदम मौजूदगी के ऊपर आपका बिल्कुल शक सही है, फिर आपका ये जाना चाहिए कि वो अपनी चीजों को फेस करने से डर गया, भाग गया, राइट। लेकिन जब तक ये चीजें हुई नहीं, वो तो आप हुई, यहाँ पर हम बताते हैं ना, आप यहाँ पे बैठ के लोगों को मैं प्रोपोगेट बताता हूँ कर ना, रहे हैं। वो अगर इसके उधर दौरान अगर वो बरी भागा। हो गया, अब बात तो आप अपना सुन लेना नाम अपनी यार, वही बात है कि वो ये हो गया तो वो हो गया। वो तो आसिया मलूना भी भाग गई थी, उसको भी भगा दिया गया था। तो क्या ये जो 295C है, इसका जो है वो मजाक उड़ाना जायज हो जाएगा? है बात तो ये कर रहे हैं कि भाई उसने 295C उसका मजाक उड़ाया, तो अब उसको पकड़ा गया है, तो ये सारे मुसलमान इसके हक में हैं कि उसने गलत किया और उसने तौहीन की है। उस्मान भाई, असल में वो भागा। अब देखें कि जब उसकी वीडियो वायरल हो रही है, ठीक एक दिन के बाद वो मदीना शरीफ पहुंच गया, मक्का पहुंच गया। इसका मतलब है ये सारा काम प्री प्लान था। एक दिन के अंदर कौन सा वीजा मिल जाता है? यहाँ पर बंदे जो है वो महीनों ये तो वही बात होगी, ये तो वही बात होगी कि अगर गारे समरा वाला भगोड़ा बाहर आ गया, अगर बाहर आ गया है, ये तो वही बात है। अगर बदतमीजी करोगे ना, देखो ओ यार ठहर जा, वो भी अपने इमाम साहब की सुन्नत पर वो अमल पैरा होते हुए वो भाग गया। ओ भाई ठहर जा, वो अपने इमाम साहब की जो है वो इससे जरा पट्टा डालें सारे यार। वो अपने इमाम साहब की सुन्नत पर अमल करता हुआ जो है वो चला गया, बाहर भाग गया यहाँ से। अब बताएं इसके अंदर क्या हमारा क्या कसूर है जी? हम क्या कर सकते हैं इसके मामले में? अच्छा, एक और बात है, वैसे इसने तमहीद बांधी आसिफ भाई। अच्छा, इसने ना तमहीद नीचे उतार दे, इसे नीचे उतार दें, इसे नीचे उतार दें नरजसी खदीर को, नरजस रंडी का बच्चा। बस तो तमहीद उसने ये बांधी है कि मुझे पता है जिसे खुसरी दे बच्चे तेरे नालों गालां बकियां सानुंदियां ने, लेकिन सानू में एक मिनट। अच्छा, उसने तमहीद ये बांधी है कि इदारों ने खुद उसे पुलिस क्लियरेंस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो उसका है वो खुद जारी किया है। इसका मतलब उसी दिन जारी किया है। भाई तेरे पास क्या सबूत है? उसी दिन जारी किया है ब्रदर, अस्सलाम है। और रंडी के, ओए नरजस रंडी के, तेरे पास क्या सबूत है? ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि ये काम पहले से वीजे लग चुके हों। अच्छा जी, उस्ताद मोहतरम ये अहमद साहब हैं, इनसे कीजिएगा बात। ये कह रहे थे मैंने सवालात करने हैं और बात करनी है, शायद ये कादियानी है। आप मॉडरेटर है ना? आप मॉडरेटर हैं उस्मान भाई? जी चलें ठीक है, आप कंट्रोल करें जरा, मैं आ रहा हूँ। जी अहमद साहब, अहमद साहब माइक ओपन करें। फैजान भाई, आपने दो चीजों के प्रूफ देने हैं विद कोर्ट। आपने एक आगे बात की है कि शिया बम धमाके में मुलव्वस है। एक दूसरी बात आपने की है कि जो लोग हैं ना इधर आते हैं वो पता नहीं आगे, वो मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग है, आपने प्रूफ करना है विद एवरीथिंग। एक शिया जनाब बात सुने जी, इतने तावले ना हो आप। मैं आपका भी सवाल बात का रुख मत मोड़िए। नहीं तो मेरी बात हो भाई, सुने ना, आप इतने तावले ना हो। क्यों ना? मेरा सवाल तो ले ले आप। ले लीजिए आपका सवाल। आप मेरा फिक्र पे नहीं, अभी इस कानून 295C के ऊपर बात करें और रजब भट्ट पर ही रखिए, इस शातिम रसूल के ऊपर, और इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, अगर इसके मतलब कोई सवाल है तो बताइए, आप करिए, नहीं तो आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। किसी और कलर जी बताएं, माइक ओपन करें, बताएं कि जो उसने 295C का मजाक उड़ाया है। भाईजान, उसने मजाक उड़ाया है ना, तो केस भी भुगत लेगा। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं, आपको फिर क्या मसला है? हम किसी को फतवा तो नहीं दे सकते कौन मुसलमान है कौन काफिर है।
नहीं क्यों नहीं दे सकते? मुफ्ती का काम ही फतवा देना है, तो वो फतवा नहीं देगा तो और क्या करेगा? वो किस चीज का मुफ्ती है? सर मुफ्ती क्या है? मुफ्ती हर किसी को फतवा दे सकता है कि आप मुसलमान नहीं है भाई, ऐसे तो नहीं ना होता नहीं, भाई। मुफ्ती ज़ाहिर के ऊपर फतवा लगाता है ना, ज़ाहिर के मामलात को देख के उसके ऊपर फतवा लगाएगा, यही उसका फरीजा है मुफ्ती का। तो जो मुफ्ती का और क्या फरीजा होता है? जो पारा चिनार कुरम में जुल्म हो रहा है उस पे मुफ्ती कोई नहीं बोला कोई भी। नहीं, पारा चिनार का मैं नहीं पता ना, क्यों? अभी तो जेरे बहस मौजू है रजब भट्ट है, शातम रसूल और 290 वो क्या यार 295 सी कानून भाईजान हमारे उसने मैं आप पहले मेरी बात सुने मुफ्ती साहब, उसने मैं आपके बकौल उसने बेहरमती की है, कोई भी मुसलमान बर्दाश्त मेरे बकौल नहीं, ओहो वो सारा मलबा मुफ्ती मुबशर शाह के ऊपर ही डाल दिया। मेरे कहाँ बकौल, अदालतों के बकौल, मेरी बात वकीलों के बकौल, जजों के बकौल, FIR के बकौल, अभी और करोड़ों लोगों के बकौल जिनकी गवाहियां अब हो गई हैं सोशल मीडिया पे, इतनी ये वायरल हुई है ये खबर, उन सब के बकौल। भाईजान बात तो सुने, बात भी तो सुने ना आप। अभी FIR हुई है, कोई केस नहीं मसला आगे चला, सिर्फ उसने बोला ये है कि जो वीडियो में है अभी हर केस की इब्तदा FIR ही होती है। हाँ जी, अच्छा अब देखिए ना, इमरान खान साहब जेल के अंदर अगर पड़े हैं तो इब्तदा तो वो FIR ही बनी है ना, सबसे पहले होती है FIR, या और क्या होता है भाई? FIR ही तो इब्तदा बनती है, जुर्म की इब्तदा FIR ही बनती है। क्या आप FIR को समझते कुछ नहीं? भाईजान आपकी बात होगी, मैं कर रहा हूँ जी। अच्छा, मैं एक बार सादे मोहतरम मैं बात करना चाह रहा था, एक ये भी चीज हो सकती है कि इधर कादियान यार कसम के कादियानियों पे इधर जो है ना, इन्होंने खत्म नबूवत के एक मुजाहिद को शहीद किया, फिर बगैर जो वीडियो बनाए हुए जो पुलिस ने हसार बनाया कि कोई अंदर ना जा सके, इनका मर्जवाड़ा जो है इबादत खाना तोड़ा गया। अब ये सारी की सारी तवज्जो जो है, ये सारी की सारी तवज्जो अब हट गई, सारी की सारी तवज्जो रजब पे चले गई है। तो इस पे आप क्या कहते हैं उस्ताद मोहतरम के ये भी कादियानियों की कोई मिली भगत है? नहीं उस्मान, मुझे समझ नहीं आई आप किस चीज की बात कर रहे हो? अभी ये जो बहावल नगर के अंदर एक कादियानियों ने खत्म नबूवत के मुजाहिद को घर में महफिल करवाने पर शहीद कर दिया, क्योंकि वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे। हाँ, अच्छा वो वाली बात कर रहे हैं आप, ठीक, शहीद कर दिया। अब वो इतना बड़ा मामला हुआ भाईजान, तो उस टाइम अपने हमारे मुसलमान ओ यार बोलने दो कसम यार, मैं नहीं बात की, बोलने दो। और भाई अच्छा, मैं ये लगा रहा हूं। उस्मान भाई इससे ना पहले बात हो चुकी है, ठीक है, ये अपनी करवा के जा चुका है, अब दोबारा टाइम जाया करने के लिए आया। और भाईजान डिबेट पे बात करें ना, फजूल किसी पे हम जिंदगी का फतवा नहीं लगा सकते आप यार। अहमद साहब आप इधर देखे, टू दी पॉइंट रहिए ना, आप खलते मबस ना करें, इधर उधर की बात ना लेके जाएं। हमारा दीन किधर कहता है कि इसकी सर उतार दे, किधर कहता है? हाँ, दीन कहता है मनसब्बा नबियन फक्तुलूहु। और भाईजान दीन जो है ना मेन थ्रेडिंग असल रोला ये है ना, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताऊँ ऐसे नहीं है, ऐसे मैं बताता हूँ ना भाई, मुझे बताने तो दीजिए, मैं बताता रोला कहाँ पे। रोला असल में ये है कि जो हदीसें या जिस कुरान को हम लोग मानते हैं उनको आप लोग नहीं मानते। आप लोगों का कुरान अलग, सुन तो लेना भाई, सुन तो ले, मुझे बात करने तो, बात तो करने देना, बात तो करने दे। जिस कुरान को या हदीस को हम मानते हैं उसको आप लोग नहीं मानते, मत लगाए। और ये वाला कानून जो बनाया ना, ये हमारे वाले कुरान और हदीस, आप वाले कुरान और हदीस का वो कानून नहीं है। इस वजह से ये मसला बना हुआ है। राफदी जिस कुरान या हदीस को मानते हैं उसको सुन्नी नहीं मानते, तो जिसको सुन्नी मानते हैं उसको राफदी नहीं मानते। तो पाकिस्तान का कानून सुन्नियों के कुरान और हदीस के ऊपर बना है। अब समझ आइए आपको मेरे भाई जी? नहीं, ये तो कादियानी, ये तो मुझे उस्ताद मोहतरम कादियानी लगता है। हाँ, तो कादियानी भी राफदियों के साथ ही खड़े हैं ना। अब भाईजान मैं मिर्जा गुलाम अहमद कदियानी पे लानत भेजता हूँ, ठीक है? चलो आप अपने ना फेस पे आगे बात करें, फिर इल्जाम लगाए, मैं फिर आपको बताता हूँ मैं क्या हूँ।
समझ आइए। ये ले, ऐसे फेस ओपन आप भी कर लें, चलें आप मैं भी भी कर गा लें। लेता हूँ। आप मुझे कर लें। आप मुझे बोले मुंह से कि आपका दूसरा कुरान है। जी करें, चले जी। फेस ओपन कर लें, कर ले ओपन। मुझे नोटिफिकेशन भेजें, क्योंकि आपका वो क्या लगाया हुआ उन्होंने, क्या लगाया है? वो ये जो क्या कहते हैं इनका, जो नोटिफिकेशन आना पड़ेगा मेरी तरफ। कौन सा नोटिफिकेशन है? न्यू इसने आईडी बनाई है नई नई, तो कैमरे का ऑप्शन नहीं होना सादे मोहतरम, तभी ललकारे मार रहा है झूठे। अब भाईजान मुझे कोई ललकारे मारने की जरूरत नहीं, मैं मुझे किसी को मैं ये कहता हूं कि ललकारे तो आप मार रहे हैं मेरे भाई। आपने कहा जी कि कैमरा ऑन करें, देखो सबसे पहले मैंने की है। ओ भाईजान ललकारे तो आप मार रहे हो, हम तो नहीं मार मेरी रहे। तरफ वो ऑप्शन नहीं है भाईजान, मेरी तरफ वो ऑप्शन नहीं है। मैंने खुद ही बोला कि नहीं, फिर इस तरह की बड़ी बड़ी बातें नहीं करते मेरे भाई। ओ भाईजान इस तरह, ओ भाईजान आप किस तरह इतने बड़े ललकारे नहीं ना मार। अब इसको जिंदा रहने का जरूरत नहीं है। किस तरह आप कह सकते हैं, किधर हमारे इस्लाम में लिखा ओ है? भाई हम नहीं कह रहे ओ यार, फिर बात को घुमा रहे हो। अदारे कह रहे, अदारे पाकिस्तान का कानून कह रहा है, पाकिस्तान का कानून कह रहा है। अभी आपने बोला है कि पाकिस्तान का कानून सुन्नियों के मसले जो है उसके ऊपर बना हुआ है। हाँ जी, उस पे ही बना है। तो बाकियों क्या राफियों के कुरान और तो फिर हदीस पे बना है। भाईजान अहले हदीस को भी मार दें, बरेलियों को भी मार दें, फिर दावत इस्लामी वालों को उनकी भी आपस में नहीं ना बनती। फिर नहीं बनती बुनती की यहाँ बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप ऐसे बात करें ना। 295C कानून की बात हो रही है। भाईजान बनती बनाती को बाद में देखेंगे। भाईजान उस पे कौन इनकार करता है? मसल की मामला क्या है वो बाद में देखेंगे। अभी तो 295C कानून की बात हो रही है। भाईजान उस पे कौन, रही है भाईजान उस पे कौन इनकारी है? 295 पे आप इनकारी हैं, आप इनका जीरा आप कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। और भाईजान मैं ये कहता हूँ कि आप इस तरह के फतवे ना दें कि कोई किसी की जान ले ले, ठीक है? मैं ये भाई ओ भाई हम फतवे कब दे रहे हैं? 295C जो है ना ये फतवा दे रहा है, ये कानून फतवा दे रहा है कि भाई जान लीजिए। 295C जो कानून है ना ये फतवा दे रहा है कि जान ली जाए। कोई भी बंदा जाके जान ले ले। नहीं नहीं, वो अदालत देगी, कोई क्यों ले। तो जब कोई जाके बंदा को मार दे उसको एक खुदा मसलन, तो उसका भाई क्या वो कोई जब करेगा तो देखी जाएगी। यहाँ पे हम जो बैठ के कभी किसी से सुने हमसे के हमने किसी ने कहा हो कि कोई भी जाके एक छुरी को आड़ा पकड़े तो जाके जान ले ले। हम तो कानून के साथ खड़े हैं, हम तो कानून की बात कर रहे हैं। भाईजान आप भी हमारे साथ खड़े हो जाएं। आप कहें कि देखें मैं आपके साथ हूँ, कानून उसकी जान ले। आप कहें मैं कानून के साथ खड़ा हूं। मैं पहले मेरी अभी एक मिनट। हाँ ये है कि इनके घरों के जो इनके बच्चे हैं, इनकी माएँ हैं, इनके बाप, जब उनके ऊपर हरफ आएगा ना, उनको कोई कुछ कहेगा, फिर ये कहेंगे कि भाई कानून इस बंदे को पकड़े और जान ले। अब भाईजान इनके घर का कत्ल हो जाए ना, तो ये अभी जाएंगे जाके कहेंगे कि भाई इस बंदे की जान ली जाए, इसने मेरे बच्चे का कत्ल किया। अब भाईजान लेकिन नामूस रसालत पे ये बकवास करते हैं, नहीं ये दे नहीं सकते। भाई कानून ने दिया है, भाई जी असी कानून ने, पाकिस्तान ने ये कानून दिया है कि जान ली जाए, तो जाओ जाके एहतजाज करो तो कानून के खिलाफ। तेरी दुबर के अंदर वो पूरी की पूरी ट्रेन ना गुजार दे तो फिर कहना, कहो जाके कि भाई ये तुम लोगों ने कानून जो है ना वो गलत बनाया है, जान नहीं ली। क्यों फतवा दिया है कि 295C का फतवा जो है वो क्यों दिया है कि ऐसा गुस्ताख हो तो उसको उसकी जान ली जाए। रोड पे निकलो और कहो कि ये कानून सही है। देखना तेरी दुबर के अंदर ट्रेन ना गुजार दी उन्होंने। खप डाली है उलमा के खिलाफ। भाई उलमा, वो कानून इस्लाम का है, उलमा की राय से है, कानून पाकिस्तान का है, वो कहता है जान ली जाए। निकलो बाहर जाके एक बार चौक में खड़े होकर जरा कहो तो ये कानून जो है ना वो हम नहीं मानते। देख तेरी होती क्या है, तेरे साथ होता क्या है। अपने बाप के लिए यही बात रजब भट्ट ने की है ना, तो देखिए उसके साथ क्या बन रहा है। वो कहता है नहीं मैं नहीं मानता पाकिस्तान के कानून को, मैं नहीं मानता 295C को, मैं नहीं। अच्छा एक दोस्तों की तवज्जो मैं दिलाना चाहता हूँ कि आजकल चूंकि वो करंट इशू छिड़ा हुआ है 295C पर जो एहतजाज किया है रजब भट्ट ने, तो यही एहतजाज
जनाब 295C के ऊपर मिर्जा जूनियर जेल में भी कर चुका है, उसकी वीडियो मौजूद है। मैं अपने पाकिस्तान के प्यारे प्यारे इदारों को जो कि बड़े गयूर हैं, बड़े मुहिब रसूल हैं, उनको मैं गुजारिश करूंगा कि जो कानून जो FIR कटी है रजब भट्ट के ऊपर, वही FIR मिर्जा जूनियर जेलमी के ऊपर भी कटनी चाहिए। उसकी वीडियो मौजूद है बकायदा। उसने 295C को ऐसे हवा के अंदर उड़ा के रख दिए। वो कहता है ये कानून जो है ना सही नहीं है जी। लोगों ने सुनी होगी वो वीडियो इसकी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे एक सवाल था पूछना था। ये 295C का आजकल बहुत सुन रहे हैं, इस पे मुझे एक वैसे एक जनरल सवाल था, क्वेश्चन था कि इसमें जो शिक है कानून में, इसमें अगर कोई फ़र्ज़ करें कि कोई दिमागी मफलूज इंसान हो, जैसे कि अब नॉर्मल बच्चे होते हैं, या कोई थोड़ा सा पागल हो, अगर वो इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके लिए भी सेम हुक्म है हमारी शरीयत में और कानून में? देखिए ये तो कानून जाने, कानून की शिकें जाने और मुकन्ना जाने। हम तो एक शरीयत वाले लोग हैं, शरीयत के रखवाले हैं, या शरीयत के मसाइल बताने वाले लोग हैं। माइक म्यूट करें यार। तो हम शरीयत के हवाले से बात कर सकते हैं। शरीयत ये कहती है कि कोई शातमे रसूल हो, बाद में वो ये क्लेम करे जी मैं पागल हूँ, मैं खबती हूँ, बहर सूरत उसको जो है ना ख़त्म किया जाएगा। बस जी, मैं यही सवाल कर रहा हूँ ना कि जैसे अक्सर लोग होते हैं कि वो उनसे कोई कत्ल वगैरह हो जाए तो बाद में उनके मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाते हैं कि देखो जो भी है बहर सूरत वो उसको ख़त्म किया जाएगा। शरीयत ये कहती है। शरीयत ये कहती है कि अगर वो बाद में या पहले भी ऐसा है तो उसको ख़त्म किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो है जो सही। चलें, जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक मिनट जैन साहब। जी। यानी कि आप थोड़ा सा ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि इस कानून का भी गलत इस्तेमाल सुम्मा माज़ल्ला जो है वो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं असल में पूछना ये चाह रहा था कि जैसे एक एबनॉर्मल बंदा होता है ना, उसको कोई वाकई जो पागल होता है, मुझे सवाल ये था कि इस शेख में ये लिखा हुआ था, मैंने जो यार देखें यार जैन साहब मुख्तसर बात करें, छोड़ें क्या बात को उलझाना, तो मैंने बताया बात का रुख मोड़ना, कोई मतलब जी शोर लोगों का काम तो नहीं है। देखे जैन साहब, बिल्कुल उन्होंने पूछा मुझसे तो मैंने बताया। ये शोर आ रहा है, मैं बताता हूँ, मैं मजीद वजाहत कर देता हूँ। यार क्या रजब भट्ट को आप लगता है, आपको शक्ल से लगता है क्या पागल है? अभी कितनी गुफ्तगू हुई है, मतलब उसके वो कहते हैं जी फैन फॉलोइंग बड़ी है, क्या लोगों ने पागल समझ के उसको फैन फॉलो हो गए? एक पागल के मतलब इतने फॉलोवर हो गए, वो परफ्यूम तक बना रहा है, तो ये पागलों का काम होता है? पागलों का काम होता है? वो वीडियो बनाता है, क्या पागलों का काम होता है? भाई पागलों का काम तो ये होता है किसी नाली के किनारे बैठ के वो वहां से गंद निकाल के अपने मुंह के ऊपर मले। पागलों का तो ये काम होता है। मुफ्ती साहब, मैंने रजब की बात नहीं की, मैंने जनरल एक सवाल पूछा। नहीं यार, नहीं, मैंने उसकी बात ही नहीं की। मैंने उसकी बात नहीं की, मैंने वैसे जनरल बात की है कि बता दिया ना हमने, आपको बता दिया पागल है या कुछ भी है, पर एक दफा उसको खत्म किया जाएगा। बस ठीक है। वो उस्मान भाई ने आगे से पूछा तो मैंने उसका जवाब दिया था, मैं तो चुप हो गया था उसके बाद। चले मैं बताता हूँ ना। जी। हाँ ठीक हो गया। मैंने कहा जब इस कानून के ऊपर भौंकने की बात आती है ना, मैं इस पे बात करने लगा था, तो लोगों को याद आ जाता है लेखे जी यानी कि उलमा और इस्लाम के खिलाफ ये करने के लिए कि देखो जी ये लोग ना गलत इस्तेमाल करते हैं। भाई देखो, ये जो डकैती की दफा है 392, इसका कितना गलत इस्तेमाल हुआ है, कितने शहरों में इसका इस्तेमाल गलत होता है। डकैत भी नहीं होता और उसको रंजिश, लड़की लड़के की जो आपस में मोहब्बतें पैदा हो गई हैं, बस इस रंजिश में मार दिया लड़के को या दुश्मनी में मार दिया और केस डाल दिया 392 का कि भाई ये बाइक रोक के जो है वो डकैती कर रहा था, लिहाजा वारदात में मारा गया। तो वहां पे आपको कभी आज तक नहीं पता चला, वैसे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा, तो उन लोगों को उसका नहीं पता चला आज तक कि इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। और बहुत सी दफात हैं जिसका कंटिन्यू जो है ना इस्तेमाल गलत हो रहा है, तो आज तक किसी ने भी उस पर बात नहीं की। जब भी बात की है तो इस पर की है। अच्छा, एक बात मेरी और भी सुन ले सारे, जब भी ये कर नहीं सकते इसको खत्म, इन कानून को ना तरमीम इसमें करवा सकते ना खत्म कर सकते, लेकिन इसका इस्तेमाल करके ये करते क्या हैं, ये उलमा को बदनाम, इस्लाम को बदनाम,
ये काम ये करते हैं। जैसे मर्दवाड़ा तोड़ा है ना, उस वो जो शियार इस्लाम है उसमें ये है कि इमारत में ये अपना मीनार भी बना नहीं सकते, ये मुसलमानों का शियार है। अब होगा क्या, वीडियो बनाएंगे, तोड़ा जाएगा सिर्फ मीनार, शो करवाएंगे ये कुफार को, जो कि जनाब ह्यूमैनिटी जो है ना, वो ह्यूमैनिटी क्या बड़ा नारा लगाते हैं, उनको दिखाएंगे, वो समझेंगे कि पूरी की पूरी इमारत इनकी गिरा देंगे, ये पूरा बेघर कर देंगे इनको, बेसरो सामान छोड़ देंगे इनको। इतने जालिम है इस्लाम, इतना जुल्म शिकार। ये चीजें ना, ये असल में ये दिखाना चाहते होते हैं इन और कानून नहीं उस्मान, ये जो है ना, ये कादियानियों की ये जो साजिश है ये पुरानी हो चुकी है। अब तो यूरोप भी समझ चुका है, उनको समझ आ गई है, सब समझ आ गई है। अभी जर्मनी से वो कितने कादियानियों को डिपोर्ट किए, कनाडा से कितने कादियानी डिपोर्ट हुए, अमेरिका से कितने कादियानी डिपोर्ट हुए। तो ये वो अब समझ चुके हैं, इनके ये पुरानी हो गए हैं ड्रामे। वो बाबा कैद आजम के जमाने के कोई टीवी होता था, उसको ऐसे जनाब बाहर ला के फेंक के गली में, और पीछे कैमरा लगा हुआ रिकॉर्डिंग हो रही है, उधर जनाब फेंक के आग लगा के, लो जी मौलवियों ने हमला कर दिया। वो देखो, होए 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 होए, मौलवी डाकू, मौलवी लुटेरे, वो देखो जी। ये सब गेमें अब तो फ्लॉप हो चुकी हैं, सब उनको पता चल चुका है कि ये किस किस्म के ये रंगबाज हैं, ये कादियानी लोग। तो ये गेम अब ज्यादा चलने वाली नहीं है जी। जी एजाज भाई आप कह रहे थे कुछ? उस्ताद मोहतरम, इनके मर्जवाड़ों के अंदर ना, वो जब वो भुट्टो का दौर की तस्वीरें हैं उलमा इकराम की, जब वो ये सानिया हुआ था, ये रबुए वाला, जब इन्होंने वो स्टूडेंटों को मारा था, तो उसके बाद पता है एहतजाज हुआ किया था उलमा इकराम ने। तो इनके मर्जवाड़ों के अंदर वो भुट्टो के दौर की तस्वीरें हैं, वो डंडे पकड़े हुए, और ये लोग बताते हैं देखें जी ये मौलवी जुल्म करते हैं, ये मौलवी सही नहीं है। इधर एक कादियानी था, उसकी मैं ट्रांसलेशन करने गया, उसके वकील को जाकर सिर्फ मैंने इतना बोला कि ये अहमदी है, उसने मेरे मुंह पे बोला, उसने बोला तू मुंह बंद रख, मैं अब तुझे बताता हूँ इसको क्या मसला है। मैंने कहा क्या? बोलता इसकी जान को भी खतरा, इसके माल को भी खतरा, इसके बहन भाइयों को खतरा, इसके माँ बाप को खतरा पाकिस्तान में। मैंने कहा हाँ। बोलता जब इसको पेपर मिलेंगे, इसको पूछेंगे ना, हाँ भाई काम कर रहा है, कर रहा हूँ, पैसे किधर हैं तेरे, अकाउंट किधर है तेरा? जी वो तो मैं पाकिस्तान भेज देता हूँ। को मकान बनाया है, बना रहा हूँ, किधर? पाकिस्तान में। अच्छा, सुनने शादी की देखने है। वालों को मैं ये अर्ज कर दूं कि ये जो बोल रहे हैं अभी इजाज भाई हैं, और ये एक्स कादियानी नो मुस्लिम है, और ये घर के बेदी हैं, ये जो बातें बता रहे हैं ये बड़ी समझ लें कि बिल्कुल सच्ची खरी घर की बातें हैं ये। तो ये कादियानी घराने से निकल के आए हैं इस्लाम के घराने में। जी इजाज भाई बात जारी रखें। उसके बाद वो बोलता है वकील बोलता है उसके बाद इसको मैं पूछूंगा ना, हाँ भाई तूने शादी की है? हाँ। किधर? पाकिस्तान में। बोलता है जब सारा कुछ पेपर लेने के बाद इन्होंने पाकिस्तान में करना होता है, तो इन लोगों ने हम लोगों को बेवकूफ़ समझा है कि जब पेपर लेने होते हैं इनका हर चीज़ पे ख़तरा होता है, और उसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाता है, पेपर हल हो जाते हैं, इनके मिल जाते हैं, तो उसके बाद जो कुछ भी ये करते ये पाकिस्तान में है। तो अब ये लोग भी जो है ना, इनकी बात पर यकीन नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आजय भाई, कोई रजब भट्ट का हमायती है, कोई उसका फॉलोअर है टिकटॉक पे, और वो चाहता है कि मैं दिफा करूं। बड़े 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 ये तो सारे कादियानी, सब कादियानी उसके फॉलोअर है, राफसी सारे, क्योंकि ये गुस्ताख है, इन्होंने करनी है गुस्ताखी। तो वो कहते मज दी भैन हुंदी है, तो गुस्ताख का भाई है, वो बचाएंगे, कोशिश करेंगे, बड़ी कोशिश करेंगे। उस्ताद मोहतरम, मालूम के साथ मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको कि कल भी ना, कल मैं रिव्यू वॉरियर है उसकी ब्रोड में बैठा हुआ था, जितने भी रजब के सपोर्टर आया ना, उनमें से 90% राफजी शिया थे, 10% जो थे वो पीटीआई के सपोर्टर थे। उसके अलावा कोई भी जो मुसलमान था ना, वो नहीं आया वहाँ पे उसकी सपोर्ट करने। ये सारे ही दो ग्रोह के बंदे आए हैं बस। चलो हेलो नवा कट्ठा खोल गए।
ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸੇੜੇ। अच्छा उस्ताद मोहतरम ये जो यार चस फरहान बड़ी है भाई ये आप बताएं तो चल जी हाँ करे बात। ਯਾਰ ਕੋਈ ये जो ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਚਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੇਸਾਂ ਮਲ ਲੀਆਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सलाम करके ना सबको जा रहा हूँ नीचे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, सबको जुमा मुबारक। ताजदार जिंदाबाद जिंदाबाद। 295 इंच अल्लाह ताला कायम है। ये हर मुजरम के लिए है जो भी गुस्ताख नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इंशाअल्लाह इंशाल्लाह बेशक। और मैं अपना कासम भाई उमैर भाई को ना अनब्लॉक कर दें, वो कह रहे थे कि मुझे गलती से हाँ मुझे गलती से कर दिया उन्होंने। ठीक हो गया ठीक हो गया। ठीक है नदीम भाई आप वालेकुम सलाम। अच्छा मेरा भी एक सवाल है उस्ताद मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम मेरा ये सवाल है कि ये जो रजब भट्ट है, सही है, रजब भट्ट पे तो लानत है, बेशुमार लानत है, लेकिन जैसे आपने फरमाया कि सबको ये कहें कि वो शातिम रसूल है, गुस्ताख रसूल है, ठीक है, अब उनकी हिमायत ना करें। तो उस्ताद मोहतरम सवाल ये है कि मैं तो अपने घर वालों को समझा रही हूँ आपके कहने पे और वो नहीं समझ रहे, तो क्या मैं उनसे बाइकआउट कर लूँ? क्योंकि ईमान का तकाजा तो यही बनता है ना, बहन भाई हो गए, माँ बाप हो गए, सारे हो गए, तो क्या मैं उनसे बाइकआउट कर लूँ? क्या शर्त चलें सवाल आ गया आपका जी उस्ताद हर कोई अपना जिम्मेदार है। हमें अपने हजूर अलैहिस्सलाम से इश्क प्यार मोहब्बत का जो है ना वो इजहार करना चाहिए। रिवायत है कि उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते कि जब तक अपनी जान माल औलाद माँ बाप से भी ज्यादा हजूर अलैहिस्सलाम से प्यार ना करो। तो बहरहाल हर एक को अल्लाह पाक हदायत अता फरमाए। जी तलहा साहब तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। मैं बाहिस्ते बाईमान जब तक जिसमें मेरे जान है मैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पैरा इंशाअल्लाह देता रहूँगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या हाल चाल है भाइयों? जी शुक्र है। अच्छा मैं सोशल मीडिया पे एक और चीज़ देख रहा हूँ अभी ना ये जो फ़र्क होकर साहिब हैं वो मुझे नहीं आइडिया कि उन्होंने काफ़ी ना रजब भट्ट के ख़िलाफ़ ना आवाज़ उठाई थी। ये जो शिया रजब भट्ट शिया ना इसके ख़िलाफ़ काफ़ी आवाज़ उठाई थी। अब ना ये जो कादियानी है या ये सारे लोग ना उसके ख़िलाफ़ वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि पहले तो मुंशियात फ़रोज था, अब मतलब कि मुंशियात से निकल के दीन की तरफ रगबत ले रहा है फ्लाटम का, उसको अब डाउन मतलब के डाउन कर रहे हैं उसको। तो ये सारे के सारे जो जितने भी कादियानी है ना ये बहुत मतलब कि इनकी बहुत लीड है जो मुसलमानों को गिरा रही है। और मैं अभी भी काफ़ी रहा था लाइव बैठे हुए कादियानी, वो बहुत बकवासें करते हैं, वो बात नहीं सुनते, वो उनको जब कोई बात करे उसी टाइम म्यूट पे लगा देते हैं। कोई समझ से बाहर है, उनका क्या हल किया जाए? समझ से बाहर उनका। बात यह है तलहा साहब कि आप जिनका नाम ले रहे हैं उनको हम नहीं जानते, लेकिन अगर उनके साथ कुछ हो रहा है तो कोई मसला नहीं। जब हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं तो हमारी इज्जत अगर जाती है कोई मसला नहीं है, कोई मसला ही कोई नहीं। बेशक ये चीज मैं भी आपकी पोस्ट से पहले आपकी लाइव से पहले एक ब्रॉड अभी ओपन हुई थी, वहाँ पे लाइव वो कादियानी का वो दे रहा है, वहाँ पे मतलब दावत दे रहा है। वहाँ पे जब जाके ओपन करो उनको बात करो, कोई बात करे वो मतलब कि या तो फिर लेफ्ट करवा देते हैं या फिर मतलब म्यूट पे लगाई जा रहे हैं। वो बात सुनने को तैयार ही नहीं, वो अपनी बात मनवाई जा रहे हैं। वो कोई या फिर उन्होंने अच्छा ठीक हो गया। वो असल में और भी कॉलर हैं
तो ये तो अस्सलाम मामूल की वालेकुम, बात। आपकी बात टोक मैंने एक बात करनी है आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वालेकुम जी। जी कैसे हैं भाई, ठीक है सब? जी अल्लाह का शुक्र है जी, फरमाएं। अच्छा, अगर मैं एक भाई बात करूँ तो माइंड ना करेंगे? माइंड तो नहीं करेंगे? जी नहीं, आपकी आवाज ना वो एक जी जी व्हाट्सएप के जी ऊपर जी 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 जी। व्हाट्सएप के हाँ जी, क्या ऊपर बोला भाई आपने? चले हाँ बात जी, कर लें, आप बाद में करते हैं जी। नहीं पहले आप बात करें फिर मैं आपको जवाब देती हूँ। अच्छा, आप नबी सल्लम हजरत अली हमारे नबी हैं, ऐसे ही बात है ना? बात कर लें आप, बाद में हम बोल जी लेंगे। जी। ये ना मैं आपको एक वोट है जहाँ पे ना हमारे नबी को टारगेट किया जाए, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा कर दिखाती हूँ, जरा चेक करें। जी पता है हमें, नहीं आप ना करें टारगेट, बात करें आप। मैं इनकी आवाज जो मिल रही थी ना, वो एक क्रिश्चियन लड़की जिसके साथ हम डिबेट करते थे, अब नाम एकदम मेरे जेहन से, शगुफ्ता शगुफ्ता थी, गालबन, हाँ शगुफ्ता थी ये। उस्मान, और उन्हीं से मिलती नहीं जी, आवाज। वही है, ये वही टोला है, और ये वही आई हुई है टिकटॉक पे काफी दिनों से। अच्छा ये वो ही तो तो है गालबन। ये वही टोला है, और हाँ हाँ, जानबूझ वो जी जी। बहुत बड़ी शातिमा, वो बहुत बड़ी शातिमा। ओहो। अच्छा चलो, बहरहाल कोई आवाजें मिलती जुलती हैं, लेकिन वैसे मैंने बात की है, ठीक। दूसरी बात है कि उन सब टिकटॉकर जो गुस्ताखे रसूल हैं, मुलहिद हैं, और तरह तरह की वो पिक्चर्स लगाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको उनके ऊपर भी जो हमारे टीम के मेंबर हैं वो काम करते हैं। तो अच्छा उस्मान, उस्मान जी मैं जी जी जाना ही थे, उस्ताद, जरा संभाल लिया जी हैं। जी उस्ताद मोहतरम। रब रख। ले जी फैजान भाई, आपके हैंड ओवर।